I welcome you all in my lecture. This lecture, first we will solve previous year's GET question based on floating point representation, and then we will move for the SOP and POS, sum of product and product of sum concept. In the previous lecture, we have solved two GET questions. Okay, na? Now this is the third question. So if you talk about this question, it will be given the following binary number in 32-bit single precision IEEE 754 फॉर्मेट, है ना, ये गिवन है. टोटल काउंट कर लो 32 बिट होगा बिकॉज ऑफ विल बी फॉर्मेट. So this first bit will represent what? Sign bit, and next 8 bit 1 2 3 4 5 6 7 8. So this will be our biased exponent. This is sign, this is biased exponent, the remaining will be mantissa. Now I want decimal value closest to this floating point number, you know. So what will be the decimal value? It will be 23. So I know minus, what will be the decimal value? Minus 1 to the power s. Formula is 1.m into 2 to the power biased exponent minus bias, okay na. So what will be the biased for n bit number? It will be plus 2 to the power n minus 1 minus 1, where n is biased exponent size, okay na. So if n is 8, then what will be the bias value? Bias will be to the power 8 minus 1 is 127. Okay, so this is minus 1 to the power sign bit is 0, so it is 0 in 1 point antisize 1101 इसके बाद सारा 0 है, no need to write. Okay, then after that 2 to the power biased exponent is bias is given here, so it is 1 2 4 8 in 32 34. What will be the biased exponent? Biased exponent will be 34 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4. The value 4 plus 2 6 plus 6 12 12 plus 8 20 20 plus 4 24. So 24 2 6 plus 2 is 8 8 plus 4 is 12, 124. Biased exponent is 124 minus bias is 127 calculated. Okay, so what will be the value? It will be plus, because minus 1, so plus 1 you can say, okay na, 1.11. since no sign is there, so no need to place plus here. कोई भी साइन नहीं होता तो हम बाय डिफॉल्ट क्या मानते हैं? पॉजिटिव. इट विल बी 01101 इंटू 2 to the power -3. जब पावर में -3 माइनस होता है तो हम क्या करते हैं? इस डेसिमल पॉइंट को आगे रन करते हैं, और जब पावर में आगे मीन्स साइड लेफ्ट साइड डेसिमल पॉइंट को ले जाते हैं, और अगर यहाँ पे पावर में प्लस होता है देन हम इसको किधर ले जाते हैं? राइट साइड, है ना. सो व्हाट विल बी द वैल्यू? इट विल बी 0.001110101. now you calculate. so this is in binary. to convert it in decimal, the value will be 145. ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज
125 can be written as 0.34453125 into 10 to the power minus 1 because now the base is 10. तो इसके क्लोजेस्ट क्या बोला है, द डेसिमल वैल्यू क्लोजेस्ट दिस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज 2.34 इंटू पावर माइनस 1. क्या क्लोजेस्ट है क्या? नहीं, अभी क्लोजेस्ट नहीं. 1 नो, इट इज पॉइंट समथिंग भी नहीं होगा. यहाँ देखो 10 टू द पावर 1 0.3, यहाँ पे 2.27 है द क्लोजेस्ट फर्स्ट 10 पावर माइनस 1. okay, so this the question which is asked in 2017 gate. Now the next question is, this question is asked in 2014 gate. So the value of the float type variable is represented using single precision 32-bit floating point format of IEEE 754 standard that use 1 bit for sign, 8 bits exponent and 27. A float type variable x is assigned the decimal value of this, the representation of x in hexadecimal notation. इसका हमें रिप्रेजेंटेशन इन हेक्साडेसिमल नोटेशन, ओके ना. और क्या बोल रहा है कि ये सिंगल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट में रिप्रेजेंट है इसका. तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिप्रेजेंट इट इन सिंगल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट, ओके ना. विल बी -14.5. तो साइन क्या है? माइनस है, तो माइनस ही रहने दो. इट विल बी माइनस एंड वी हैव टू कन्वर्ट 14.25 इंटू बाइनरी बिकॉज इट इज़ इन डेसिमल. बाइनरी में क्या हो जाएगा? 14 का 8 4 12 2 0.5 इंटू 5 देयर 0.5 इंटू 0.0. so the value will be 0.1 is 0. now we can write it as -1.11001 in normalized form, है ना. so normalized form में जब इसको हम लिखेंगे, what will be the powers of 2 will be 1 2 3, है ना. ये जो बाइनरी पॉइंट था हमने क्या किया, 3 पोजीशंस आगे ले लिया, तो इट विल बी +3. ओके, नाउ this is sign bit, sign is negative so it will be 1. okay, or this bit is for mantissa and we have to calculate what? Biased exponent. It is actual exponent that is 3 plus 127 the bias because it is 32-bit रिप्रेजेंटेशन है. इसमें हमें 8 बिट मिलेगा किसके लिए? बायस्ड एक्सपोनेंट के लिए. 8 बिट के लिए तो बायस की वैल्यू होती है दैट इज 127. टोटल इट विल बी 130 रिप्रेजेंटेशन. आई वांट 1 2 4 8 16 34 then 128. rest will be 0. now represent it. going to represent it 9 bit. this is for biased exponent, 1 for mantissa. will be sign bit is 1 because the number is negative. पर नेगेटिव है इसलिए साइन बिट क्या होगा? 1 होगा. नाउ फॉर बायस्ड एक्सपोनेंट इट विल बी ऑफ 8 बिट, so 4 and 4 8 bit, okay ना. so it will be 1, how many zeros? 5 zeros, 1 0, okay ना. then mantissa is this one, 1 1 0 0 1 1 0 0 1. First bit will be all 0, okay, up to 23 bits is 8 1 bit. okay, now we take how many bits?
4 बिट्स, टोटल इज 32 बिट, तो हम 4 बिट ले लेंगे, 4 बिट, बिकॉज आवर आंसर इज इन हेक्साडेसिमल फॉर्म। 4 बिट, नेक्स्ट 4 बिट और दी नेक्स्ट, और इधर जितना है सब ज़ीरो है, तो अभी यहाँ पे चूँकि ये 32 बिट है, तो 32 बिट में से 16 बिट इधर है, तो 16 इधर होगा, 40। एक हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव 4 बाइनरी बिट्स, तो 16 इधर हो गए। यहाँ पे देखो व्हाट विल बी द वेट, 1248 इज 1248, 1248, 128, so from here we will get what, 8 plus 4 is 12, 12 is C, from here we will get 1, here we'll get 4 plus 2 is 6, from here we will get 4, what will be the answer, 16440, which option, the first option. In the next format we have 0.5 is our number, decimal number, and we have to represent it in single precision floating point representation. Okay, so what will be the value in binary, 0.5 into is 1.0, so it's 1 only, because f0, so of here it will be 2.1. okay, now we have to change it in normalized form, so it's 1.0 into टू द पावर -1, है ना। यहाँ पे क्या लिख रहा है, द डेसिमल वैल्यू 0.5 इन IEEE सिंगल फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन हैज़ फ्रैक्शन बिट्स ऑफ 000, ऑल जीरोज, फ्रैक्शन बिट में ऑल जीरोज हैं, एक्सपोनेंट वैल्यू 0 है, एक्सपोनेंट यहाँ 0 है क्या, नहीं है। तो फ्रैक्शन बिट क्या होता है, मैंटिसा बिट, मैंटिसा सारी 0 है, यस मैंटिसा तो सारा 0 है, यानी फ्रैक्शन बिट सारा 0 है, बट एक्सपोनेंट इज -1, तो फ्रैक्शन बिट 0, एक्सपोनेंट वैल्यू इज -1, यस, ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे क्या बोल रहा है, फ्रैक्शन बिट इज 1 0, नो, फ्रैक्शन बिट सारे के सारे क्या है, 0 हैं, यहाँ पे तो बोल रहा है -1, डी ऑप्शन इज, हाँ, दिस इज़ वेरी सिंपल। ये पूरा का पूरा बस देखने में बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं इसमें, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में, बट वेरी सिंपल है ना। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस सिलेबस में है, क्या है आपका फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंट, नंबर सिस्टम सिलेबस में सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंट। और देखो कितना आसान है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द बूलियन फंक्शन, है ना, आपका SOP POS आ जाएगा, ठीक। तो पहले हम देखते हैं, जैसे मान लो हमें कोई सर्किट बनानी हो, तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, आई हैव वन क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल suppose I want to design a digital circuit, design binary digital system, BDS means binary digital system, in which we have inputs, we have two inputs, and when both inputs are different, then output is 0, and when both input are same, then output is, तो हमें एक ऐसा बाइनरी
डिजिटल सिस्टम बनाना है जिसमें हमारे पास दो इनपुट्स हैं और अगर दोनों इनपुट्स हमारे डिफरेंट्स होते हैं देन द आउटपुट इज़ ज़ीरो, एंड जब वो दोनों के दोनों इनपुट सेम होते हैं तो आउटपुट क्या देता है, वो 1 देता है। तो ऐसा हमें एक सिस्टम बनाना है। हाँ, हम इसको कैसे बनाएंगे? इसमें हम क्या करते हैं, ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल क्या होता है? ट्रुथ टेबल होता है जो बताता है हमको कि हर एक इनपुट के लिए हमारा जो सिस्टम है वो बिहेव कैसा करेगा, यानी हर एक इनपुट के लिए आउटपुट क्या आएगा। ये हमें कहाँ से मिलता है? ट्रुथ टेबल। ओके, तो ट्रुथ टेबल में दो चीज़ें होती हैं, इनपुट आउटपुट, है ना। यहाँ पे हमारे पास इन कितने वेरिएबल हैं? 2 x y। सपोज आउटपुट हमारा f है। और ये जो दो इनपुट्स हैं, हर एक इनपुट, यहाँ पे जितने हमने वेरिएबल यूज़ किए हैं, चाहे वो इनपुट हो या आउटपुट है, सारे के सारे क्या हैं? 1 बिट है, ठीक है ना। 1 बिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब भी हम कोई चीज़ डिजिटल में ऐसा कुछ लिखते हैं एक्स वाई टाइप का, तो हमेशा ये वाली वैल्यू लिखी जाती है और ये वाली वैल्यू LSB। ऑलवेज रिमेंबर। तो हम वी हैव 2 पोजीशंस, एक तरह से हमारे पास क्या है? 2, और इन 2 पोजीशंस पे हमको क्या करना है? बाइनरी नंबर्स के कॉम्बिनेशंस। अगर आप बाइनरी नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, इस प्लेस को कैन फिल इन वेज, आइदर यू और 1 पेज से फिल। सिमिलरली वी कैन पुट आर 1 हियर। 2 वेज से हम कर सकते हैं। हाउ मेनी वेज? पावर 2। पावर 2 मीन्स 4 वेज। ओके, मतलब क्या हुआ कि इफ वी हैव 2 इनपुट्स then how many combinations are possible? To power 2 we have 2, then number of combination will be 2 to power 2. If we have 3 inputs, then the number of combination power 3. If we have n input, then number of combination will be power n. यहाँ पे हमारे पास कितने कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे? 2 to the power 2, यानी 4 कॉम्बिनेशन, बिकॉज वी हैव 2 इनपुट्स। ओके, तो हमें पहले से पता हो गया है कि वी हैव 4 कॉम्बिनेशन। तो आप क्या करो, जब भी LSB के लिए लिखना हो तो यहाँ 2 की पावर 0 लिखो, यहाँ लिखो 2 की पावर 1। 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 होता है। यहाँ आप क्या करो, कॉम्बिनेशन आपको 4 बनाने हैं, तो आप 1 0 1 1 1 0 1 1 लिखो, 4 टोटल 4 टाइम, है ना। मतलब टोटल 4 कॉम्बिनेशन होने चाहिए। तो 4 कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 क्यों लिखा? यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन में लिखे? 4 ही हैं। 2 इनपुट के लिए हमारे पास 4 ही कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है ना। नाउ इफ़ यू मूव हियर, सो इट विल बी 2 to the power 1। 2 to the power 1 इज़ 2। सबसे पहले हम पहले ज़ीरो स्टार्ट करेंगे, लेकिन कितने ज़ीरोज़ लेने हैं विल डिपेंड्स ऑन द पावर्स ऑफ 2। तो यहाँ पे 2 की पावर 0 था, इसलिए 1 0 1 1। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो हम क्या करेंगे? 2 एंड 2 1, टोटल 4 ही कॉम्बिनेशन बनने थे, है ना। अब देखो यहाँ पे जो पॉसिबल 4 कॉम्बिनेशंस हैं वो अपने आप बन गए, आपको कुछ करना नहीं, है ना। तो नाउ मूव टू द क्वेश्चन। व्हेन बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट, आउटपुट इज 0, है ना। तो यहाँ पे देखो, बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट और सेम। इट इज 0, इट इज 0, सेम, सो व्हाट विल बी द आउटपुट? 1। ओके, नाउ हियर both input are different because it is 0, it is 1, so output will, it is 1, it is 0, both are different, so it will be, it is 1, it is 1, so both are same, so it will be, okay na. Now after constructing truth table, we have to write boolean function corresponding to this truth table ना। तो जो बुलियन फंक्शंस हैं, बुलियन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि बाइनरी पे वर्क करता है, ठीक है ना।
को लिखने के लिए हमारे पास दो अप्रोच है। द फर्स्ट अप्रोच इज नोन एज मीन टर्म अप्रोच, इज मीन टर्म अप्रोच of designing a binary decimal system। मीन टर्म अप्रोच हमें यहाँ पे फॉलो करना है। मीन टर्म अप्रोच में क्या होता है, दो अप्रोच है, मीन टर्म और मैक्स टर्म अप्रोच। तो पहले मीन टर्म पढ़ लेते हैं, देन वी मूव फॉर द मैक्स टर्म। ठीक, तो मीन टर्म में होता क्या है, मीन टर्म में हमेशा आउटपुट 1 इज कंसिडर्ड। आउटपुट 1 यहाँ है, आउटपुट 1 यहाँ है। ठीक, तो एक बार f की मैं वैल्यू लिख देता हूँ, f इक्वल टू x बार y बार प्लस एक्स वाई। अब माइंड में तुरंत आएगा ये कैसे लिख दिया, ऐसे होगा, उसको एक बार देख लेते। ये जो हमने लिखा ना, ये जो टर्म्स हैं, इन्हीं टर्म्स को हम बोलते हैं मीन। क्या बोलते हैं, मीन टर्म। मीन टर्म अगर हमें लिखना है कैसे लिखेंगे, एक डिफिनीशन आती है, मीन टर्म इज ऑब्टेन्ड बाई एंडिंग। देखो बीच में हमने क्या दिया है, एंड ऑपरेशन दिया है, यहाँ भी यहाँ भी। मीन टर्म इज ऑब्टेन्ड बाई एंडिंग all the variables okay in such a way that bit 0 क्या रिप्रेजेंट करेगा, देखो यहाँ पे जब बिट 0 था तो हमने x की वैल्यू यहाँ पे क्या लिख दी थी, x बार। यहाँ भी बिट 0 था तो हमने y की वैल्यू क्या लिख दी थी, y बार। कंप्लीमेंट भी पढ़ते हैं, y कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट। हाँ, और जब हमने यहाँ इस 1 के लिए जब हम इसको लिखने गए तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, x, और यहाँ पे लिख दिया y। यानी जब भी बिट जो है 0 होगी तो हम किस फॉर्म में लिखेंगे वेरिएबल को, कंप्लीमेंट फॉर्म में, फॉर्म में लिख, फॉर्म मीन्स x बार r। और अगर बिट 1 है, वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 1 है, देन वी विल राइट इट इन नॉर्मल फॉर्म, और यू कैन से अनकम्प्लीमेंटेड फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल x और। समझ में आया। सो मीन टर्म हम कैसे लिखते हैं, मीन टर्म इज ऑब्टेन्ड बाई एंडिंग all the variables in such a way that bit 0 represent completed form and bit 1 represent normal form। तो यहाँ पे अब मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, रिवर्स प्रोसेस अप्लाई करता हूँ। जैसे इसके लिए मैंने लिखा था, तो ये क्या है, x की वैल्यू 0 है तो ये हो जाएगा x बार, y की वैल्यू भी 0 है तो ये हो जाएगा y बार, और बीच में हम क्या करेंगे, एंड ऑपरेशन कर देंगे। इस इनपुट के लिए मैक्स टर्म हमारा क्या हो गया, ये हो, और सॉरी इस इनपुट के लिए मीन टर्म हमारा क्या हो गया, x बार डॉट y बार। ठीक है, नाउ यहाँ भी इस वाले इनपुट के लिए भी आपका आउटपुट क्या है, 1 है। हमेशा आउटपुट 1 को ही कंसिडर करेंगे मीन टर्म में, है ना, लेकिन मैक्स टर्म में हम 0 को कंसिडर। तो इस इनपुट के लिए, ये जो इनपुट है इसके लिए यहाँ पे मीन टर्म क्या हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1 है तो इसको हम लिखेंगे नॉर्मल फॉर्म में, y की वैल्यू 1 है तो इसको भी हम लिखेंगे नॉर्मल फॉर्म में, और सारे वेरिएबल को हमने लिख लिया। फिर हम बीच में क्या कर देंगे, एंडिंग कर देंगे। ठीक है, अब नाम से ही क्लियर है, ये जो अप्रोच होता है इट इज़ कॉल्ड एज सम ऑफ मीन टर्म। ये जो मीन टर्म मिलता है उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सम कर दिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मीन टर्म ऑब्टेन्ड में आ गया कैसे, और देखो दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या है मीन। सो मीन टर्म इज
रिप्रेजेंटेड एज, प्रेजेंटेशन क्या है, स्मॉल m और यहाँ पे क्या होगा j। j क्या होता है, j इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी इन, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी इन। ठीक, फॉर एग्जांपल आप अगर इसके लिए मैक्स टर्म की वैल्यू लिखना चाहें, उसका रिप्रेजेंटेशन के लिए का डेसिमल वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 0 दोनों है तो यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बाइनरी में 1 1 को हम 3। इस केस में हमने मीन टर्म कहाँ लिखा है, ये वाला, ये मीन टर्म है। तो अगर रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में लिखें तो वी विल राइट इट एज m, और j की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी इनपुट। ये बाइनरी इनपुट हमारे पास है, उसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है 0, राइट हियर फॉर दिस, राइट m, और व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट फॉर दिस इनपुट इज 3। अभी हमने बस ये देखा कि ये टर्म्स हमने कैसे लिखे, तो f की वैल्यू में तो हमने ये टर्म्स हैं, ये कैसे आया ये हमने देखा। अब ये बीच में प्लस कैसे आया वो देखते हैं। तो सम ऑफ मीन टर्म, हमने क्या कर दिया, मीन टर्म को सम कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, f इक्वल टू एक्स बार वाई प्लस एक्स। तो हमने क्या किया, हमें मीन टर्म मिल गए, कौन कौन से मीन टर्म, एक्स बार वाई बार प्लस एक्स वाई। तो हमने क्या कर दिया, उसको उसका सम कर दिया तो हमें क्या मिल गया, वो बुलियन फंक्शन में। ठीक, इसी को हम बोलते हैं सम ऑफ मीन टर्म अप्रोच। मीन टर्म्स का आप क्या कर दो, समेशन ले लो, तो दैट विल बी सम ऑफ मीन टर्म। ठीक, का एक और रिप्रेजेंटेशन है m इक्वल टू, यहाँ अभी हमने देखा था इस मीन टर्म को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज हियर m0 1 m3 m0 प्लस m3। ठीक, ये एक और रिप्रेजेंटेशन है, सब हम मीन टर्म को, सब एक ही चीज़ है, ये वैल्यू है ना, वाली जो वैल्यू है वही सेम प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटेशन। तो m3 लिखने को बोले तो इन द वेरिएबल फॉर्म देन इट विल बी एक्स वाई ओनली। हाँ, ऐसे ही m0 क्या हो जाएगा, एक्स बार वाई बार। तो वन मोर रिप्रेजेंटेशन हियर फॉर सम ऑफ मीन टर्म। मैथ में जब हम सम करते थे तो वी विल समेशन, फाइन समेशन हो गया, समेशन हमें किसका करना है, एंड है ना। तो कई जगह के पे आपको ऐसे मिलेगा, स्मॉल m भी लिखा होता है। ये है सम ऑफ मीन टर्म ऑफ 0.3, है ना, यानी m0 और m3 को हमने सम करके सम ऑफ मीन टर्म लिया। आई थिंक समझ आ रहा होगा। दिस वन इज द फर्स्ट अप्रोच, फाइंड फंक्शन ऑफ ए binary digital system, okay na। what will be the second approach, second is called as max term approach। इन टर्म हमने देख लिया, अब मैक्स टर्म हम देखें। इन मैक्स टर्म तो हमारा ट्रुथ टेबल था, तो वो कैसे 1 1 1, जब आर सेम देन इट इज मीन टर्म और मैक्स टर्म एक दूसरे की एक तरह से, नो मीन टर्म देन इज देन राइट मैक्स टर्म, हर एक चीज़ अपोजिट होगा उसका, ऐसे लिखेंगे। तो वहाँ पे व्हेन वी कंसिडर मीन टर्म देन वी टेक आउटपुट एज 1, लेकिन जब हम मैक्स टर्म देखेंगे तो आउटपुट कौन सा देखेंगे,
है ना, आउटपुट क्या हो जाएगा 0, कैन बी राइट एज इक्वल टू x प्लस वाई बार x बार प्लस वाई। ओके, तो जो हमने यहाँ पे लिखा ये टर्म और ये टर्म कॉल्ड एज मैक्स टर्म। क्या है? मैक्स टर्म। प्लस रिप्रेजेंट करता है और ऑपरेशन। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ऑरिंग की है इसका, हर एक वेरिएबल का फंक्शन, ऑल वेरिएबल्स का हमने ऑरिंग किया है, जिसमें ज़ीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे ये यही तो था, ज़ीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ज़ीरो की जगह हमने एक्स लिया है, मतलब नॉर्मल वेरिएबल, और वन रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ वन की जगह हमने वाई बार लिया है, कम्प्लीमेंटेड वेरिएबल। मैक्स टर्म इज ऑब्टेन्ड by ORing all the variables in such a way that bit 0 represent, 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, नॉर्मल या कम्प्लीमेंटेड, नॉर्मल, नॉर्मल वेरिएबल, एंड bit 1 रिप्रेजेंट कम्प्लीमेंटेड वेरिएबल। यानी अगर वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो हम उसका कम्प्लीमेंट दे देंगे मैक्स टर्म में। इफ़ यू सी हियर, तो जो भी हम ऑपरेशन मीन टर्म में करते थे, मीन टर्म में हम क्या करते थे, एंडिंग करते थे सारे वेरिएबल का, और उसमें बिट 0 हमारा कम्प्लीमेंटेड वेरिएबल को रिप्रेजेंट हो रहा था, और बिट 1 हमारा नॉर्मल वेरिएबल रिप्रेजेंट। लेकिन जब हम मैक्स टर्म की बात करेंगे तो ये जस्ट अपोजिट होगा, उसमें आउटपुट हम 1 देखते थे, इसमें आउटपुट हम 0 देखेंगे। ठीक, उसमें हम एंडिंग करते थे, इसमें हम ऑरिंग करेंगे। मैक्स टर्म इज ऑब्टेन्ड बाई ऑरिंग ऑल द वेरिएबल्स इन सच अ वे दैट बिट 0 उसमें रिप्रेजेंट करता था, उसमें किसमें, मेन टर्म में, बिट 0 मेन टर्म में रिप्रेजेंट करता था कम्प्लीमेंट फॉर्म, और बिट 1 उसमें क्या रिप्रेजेंट करता था, नॉर्मल फॉर्म। ठीक, इसमें अपोजिट, इसमें बिट 0 नॉर्मल फॉर्म एंड बिट 1 क्या होगा, कम्प्लीमेंटेड फॉर्म, है ना। तो मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करने का तरीका है एक, मैक्स टर्म इज रिप्रेजेंटेड, पहला तरीका तो ये है कि आप डायरेक्ट उसके ऐसे टर्म्स लिख, इट इज़ मैक्स टर्म। दूसरा तरीका क्या है, मैक्स टर्म इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल एम जे। मेन टर्म में हम स्मॉल एम लिखते थे, मैक्स टर्म में वी विल राइट कैपिटल एम जे, और जे की वैल्यू वही है, जे इज द इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी इनपुट। ओके, चलो अब हम इसके लिए लिख देते हैं, ये आया कैसे, हाउ वी राइट दिस वन, करते हैं इसको। तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 है, मैक्स टर्म अगर हमें इसका लिखना है, वेन एवर एक्स इज 0, वेरिएबल की वैल्यू 0 हो तो उसको नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं, राइट x, एंड देन y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 होने का मतलब इट विल बी इन कम्प्लीमेंटेड फॉर्म, इट विल बी y बार, ना। और बीच में हम क्या करते हैं, वी विल टेक ऑरिंग, ऑरिंग मीन्स, है ना, इस वजह से हमने यहाँ पे ये, नाउ फॉर दिस आउटपुट x is 1, x is 1 is 1 means complemented form, so it can be represented as x bar plus, now y is 0, 0 as normal form, here will be y, और बीच में हमें ऑरिंग करना था because have ORing all the variables in such a way that bit 0 represent normal variable, bit 1 represent complemented variable, okay na. Now I want to write it in terms of mj, so what will be this m, and what is the decimal value of this is 1,
it is 3 and it is 0. So corresponding to this input we have decimal value 1, so it is written as m1. Now is represented as m2. ओके ना, क्या रिप्रेजेंट करेंगे m1 m2. नाउ दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एट, यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोडक्ट किया है किसका, मैक्स टर्म का, विल बी द टर्म प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म. क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म. जो अप्रोच है यहाँ पे, दैट अप्रोच इज प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म राइट बूलियन फंक्शन. एफ विल बी x plus y, the first max term, then take second max term x bar plus y and take AND operator in between, or product in. So want it to write in terms of representation, then it will be m1 डॉट m2. f will प्रोडक्ट है ना, ये बीच में प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट को मैथ में हम कैसे डिनोट करते थे, पाई 1, और कैन राइट इट एज पाई m12. दोनों में से आप कोई भी लिख सकते है ना, बोथ आर करेक्ट, डोंट वरी अबाउट दैट. So these are the two method from which we can write Boolean function of a binary digital system. So now we know that how we write Boolean function with two approaches, that is sum of min term and product of max term. Okay, so note, either you have sum of min term or you have product of max term. Okay na, these two represents unsimplified forms of एक्सप्रेशन. यानी जो सम ऑफ मिन टर्म या प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म से जो एक्सप्रेशन हमें मिलेगा, जो फंक्शन हमें मिलेगा, दैट फंक्शन इज अनसिम्प्लीफाइड फंक्शन. यानी ऐसा पॉसिबल है कि उस फंक्शन को आप फर्दर मिनिमाइज कर सको, टर्म्स को आप उसमें एलिमिनेट कर सको. तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन व्हाट विल बी सम ऑफ मिन टर्म एंड प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म. So after simplification, these two, sum of min terms and product of max term, is called as sum of product or product of sum. तो P क्या है, इज सम ऑफ प्रोडक्ट. ऑफ प्रोडक्ट पार्ट, पहले प्रोडक्ट करेंगे देन उसका सम करेंगे. प्रोडक्ट मीन्स मिन टर्म एंड देन उसका सम कर दिया. पीओएस, पीओएस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम. प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम मीन्स पहले सम करेंगे मीन्स मैक्स टर्म, देन वी टेक प्रोडक्ट ऑफ दैट, विल गेट प्रोडक्ट ऑफ मैक्स. कुल मिला के यहाँ पता चला सम ऑफ मिन टर्म और प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म जो है वो सिंप्लीफाइड वर्जन नहीं होते हैं. अगर आप उसको सिंप्लीफाई कर देते हो देन दे कैन बी नोन एज सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम. तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट इज इफ यू
सम ऑफ टर्म्स या प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म रहे, क्या है हमारा थर्ड वर्जन। ठीक, बट इफ यू राइट एसओ और पीओएस थर्ड वर्जन। अगर सम ऑफ मिनटर्म को सिंप्लीफाई कर देते देन दैट सम ऑफ मिनटर्म इज नोन एज सम ऑफ प्रोडक्ट, एंड इफ प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म को आप सिंप्लीफाई कर देते देन इट इज नोन एज प्रोडक्ट ऑफ सम। नाउ आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज वेरिएबल्स, लिटरल्स एंड टर्म्स। कई बार पूछा जाता है, एक एक्सप्रेशन गिवन होता है और उसमें आपसे पूछ दिया जाएगा में कितने वेरिएबल्स हैं, कितने लिटरल्स हैं, कितने टर्म्स हैं। का क्या है ये, f इक्वल टू सपोज द फंक्शन इज गिवन एज x बार y बार प्लस एक्स वाई बार, तो दिस इज आवर फंक्शन। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल जो यहाँ पे ये दो इनपुट्स हैं, ये इनपुट्स बोले जाते हैं, ठीक है ना। सो दीज आर कॉल्ड एज वेरिएबल। तो नंबर ऑफ वेरिएबल इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स वन आस्क विल बी 2, यानी जिन दो वेरिएबल से मिलकर दैट फंक्शन क्रिएटेड, उन दो वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं, इसे हम इनपुट वेरिएबल भी बोल सकते हैं या वेरिएबल भी बोल, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ वेरिएबल इज 2। टर्म, टर्म क्या होता है, जैसे ये पूरा का पूरा दैट इज वन टर्म, तो इट इज मीन टर्म, ओके ना। सो हाउ मेनी मीन टर्म इज देयर, नंबर ऑफ टर्म बोले या नंबर ऑफ मीन टर्म्स बोले, बिकॉज टर्म वन इज दिस, टर्म टू, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, टू टर्म्स। आई वॉन्ट टू नो नंबर ऑफ लिटरल्स। नंबर ऑफ लिटरल्स क्या होता है, एक पर्टिकुलर जो आपका वेरिएबल है इन एनी फॉर्म, वेदर इट इज़ नॉर्मल फॉर्म और कम्प्लीमेंटेड फॉर्म, उसको हम लिटरल बोलते हैं। तो दिस वन इज कॉल्ड एज वन लिटरल, वन लिटरल, सेकेंड वन इज दिस वन, थर्ड वन इज दिस वन, फोर्थ वन इज दिस इज लिटरल। क्या होता है, एक वेरिएबल आइदर इट इज़ इन कम्प्लीमेंटेड फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म, चाहे वो भले ही रिपीट हो, जितनी बार वो फंक्शंस में होगा यू हैव टू काउंट दैट मेनी टाइम्स, इट विल बी नंबर ऑफ लिटरल्स इज इक्वल टू फर्स्ट 2 in this term, 2 in t1 and 2 in t2, total it is 4. Suppose I have this f of xy equal to x plus y, x bar plus y. I have Boolean function. So how many number of variables, how many number of terms and how many number of literals are there, decide। आप यहाँ पॉज करके डिसाइड कर लीजिए, हाउ मेनी literals, terms and variables are there। number of variables, number of variables I already told you, जितने इनपुट्स का यूज़ करके, जितने इनपुट वेरिएबल्स का यूज़ करके वी हैव फॉर्म दिस फंक्शन, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, वेरिएबल्स। तो कितने वेरिएबल्स हैं, एक्स एंड वाई। यहाँ जो वेरिएबल्स थे वो कौन कौन से हैं, एक्स और वाई। हाउ मेनी, यहाँ भी क्या था वही से, ठीक ठीक। यहाँ पे देन वी गो फॉर द टर्म्स। मैक्स टर्म क्या होता है, ये एक टर्म हो गया, एक टर्म ये हो गया, चाहे नंबर ऑफ मैक्स टर्म पूछे और नंबर ऑफ टर्म्स पूछे, बोथ आर इक्वल। नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 2, कौन कौन से, एक्स प्लस वाई एंड एक्स बार प्लस वाई। अर्ली हियर एक्स बार वाई बार एक्स वाई,
Now next one is number of literals. Number of literals will be 4 again, that is x, y, x bar, y. One literal, the fourth literal. Total how many literals are there? 4. Now our next topic is relation between mean term, max term for a particular input. पर्टिकुलर इनपुट के लिए मेन टर्म एंड मैक्स टर्म में रिलेशन क्या है वो सपोज आई हैव m0 इज x बार y बार, है ना, बिकॉज इज 0 also 0 in mean term, is so I want complement of this. What will be the value? x बार y बार पे De Morgan's lab. आगे हम अलजेब्रा पढ़ेंगे, Boolean अलजेब्रा. In that we will study formula. We have y bar plus we have x plus y bar or x डबल बार प्लस y डबल बार. कोई भी आपके पास अगर बाइनरी डिजिट है, यू टेक बार एंड यू टेक टाइम्स complement will be that very or that digit. Okay, want to prove of 0 1 bar is also of 1 will be x plus y, and x plus y can be written as max terms. Max term of what? 0. Because max term normal variable is represented as 0 and complemented variable is represented as 1. यहाँ पे x की पे बार नहीं है, is 0. Now it is also 0. No complement. 0 0 means decimal value is for that input is 0. So is max term because we are r-ing है ना, r-ing है तो ये and the decimal is 0. So m0 bar is equal to m0 for a particular input term and max term are a feature of क्या बोला, फॉर ए पर्टिकुलर इनपुट. ऑलवेज रिमेंबर दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है. टॉक अबाउट ऑल द इनपुट्स, तो ऑल द इनपुट्स के लिए ये दोनों सेम होते हैं. आपको एक प्रूफ करके दिखाता हूँ मैं. वी हैव अभी हमने एक प्रूफ किया था व्हाट एफ की वैल्यू हमने अभी ऊपर निकाला था बुलियन फंक्शंस का. आई विल शो यू. this one, this, it is x plus y bar to x bar plus y. It is x plus y bar and x bar plus y. So it can be written as multiply करो x into x bar plus xy plus y bar x bar
प्लस वाई बार वाई। तब कभी भी आप बुलियन में जाओगे, बुलियन अलजेब्रा की बात करोगे, सपोज 1 बिट इज़ 0 तो इट विल बी 1, अगर ये 1 होगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी अल्टीमेटली इट विल बी 0। एक्स वाई बार वाई बार, वी कैन राइट इट लाइक दिस इट ऑल्सो द वैल्यू वाई प्लस एक्स बार वाई बार। देखो यही हमारा आया था, एफ की वैल्यू आई थी व्हेन वी रिप्रेजेंट इट इन सम ऑफ मीन टर्म्स, है ना। सो अगर ओवरऑल बात की जाए, बोथ आर सेम ओवरऑल इनपुट्स के लिए, ओवरऑल फंक्शंस के लिए बात की जाए, बट फॉर ए पर्टिकुलर इनपुट ले लिया जाए, जैसे 0 इनपुट, 1 इनपुट, 2 इनपुट, 3 इनपुट, इस पर्टिकुलर इनपुट्स के लिए मैक्स टर्म और मिन टर्म क्या होते हैं, एक दूसरे के कंप्लीमेंट होते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है? इफ फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड in sum of mean term or product of max term, form, then it is called as canonical form। हम क्या बोलेंगे? कैनोनिकल फॉर्म कर बोलेंगे। अगर कोई हमारे पास बुलियन फंक्शन है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन आइदर सम ऑफ मीन टर्म और प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, फंक्शन बोलेंगे, है ना, या कैनोनिकल फॉर्म बोलेंगे। अगर सम ऑफ मीन टर्म है देन वी कॉल इट एज कैनोनिकल सम ऑफ मीन टर्म, और अगर प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म है देन वी कॉल इट एज कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, है ना। द नेक्स्ट इज conversion between canonical sum of term and product of max term। अगर हमारे पास सपोज वी हैव कैनोनिकल सम ऑफ मीन टर्म एंड वी हैव टू चेंज इट इन कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, और वी हैव कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म एंड वी हैव टू चेंज इट इन कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ कैनोनिकल सम ऑफ मीन टर्म, देन हाउ वी कन्वर्ट इट, है ना। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज जहाँ समेशन हो रिप्लेस पाई। फर्स्ट ऑप्शन, पहला स्टेप क्या है? स्टेप्स में पहला क्या है? जहाँ समेशन दिखे यू कैन प्लेस पाई इन दैट प्लेस, ओके ना। जहाँ पे समेशन होगा वहाँ पे आप क्या कर दो, उसके प्लेस पे पाई लिख दो। देन सेकेंड वन इज राइट द मिसिंग नंबर, और फिर उसमें मिसिंग नंबर लिख दो। क्या होता है अभी एक एग्जांपल से आई विल क्लियर। ओके, सपोज आई हैव वन क्वेश्चन, by that I have a example is a function is given f equal to x plus yz, suppose this is the function and we have to convert it in canonical sum of mean terms, okay, convert it in
canonical sum of minterm, and then change in canonical product of max term. ये 2 क्वेश्चन है इसमें, इसको हमें करना है. सपोज वी हैव गोइंग टू ट्राई इट f इक्वल टू x प्लस वाई जेड, है ना. यहाँ पे क्या क्या मिसिंग है, विच टर्म इज मिसिंग, फर्स्ट टर्म y एंड z, बट इन द सेकेंड टर्म x इज मिसिंग. तो जो मिसिंग होता है उसको हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, ठीक है ना. कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करने का मतलब क्या है कि सारे के सारे टर्म अवेलेबल होने चाहिए, कोई भी टर्म मिस नहीं होना चाहिए, हर एक कोई भी वेरिएबल मिस नहीं होना चाहिए हर एक टर्म में, ठीक है ना. तो यहाँ पे इफ़ यू टॉक अबाउट हियर, तो y एंड z आर मिसिंग, एंड इफ़ यू टॉक इन दिस टर्म देन x इज मिसिंग. तो हमें क्या करना होगा, यू कैन राइट इट लाइक दिस, है कि नहीं. x में आप 1 से एंडिंग करोगे तो विल बी x ओनली, है, प्लस 1 इंटू वाई इंटू जेड. हमेशा यहाँ पे मैंने माना है x एम है और z हमारा एल एस बी, ओके ना. कैन राइट अगेन इट एज x वाई प्लस वाई बार. देखो y प्लस वाई बार ऑलवेज इट इज 1. हाउ, सपोज y इज 0, so it is 0 plus 0, 0 complement, 0 complement, 0 plus 1, ऑलवेज y प्लस वाई बार इज 1. इससे क्या हुआ, जो y हमारा मिसिंग था, नाउ वी हैव दैट y. अगेन फॉर दिस वन z प्लस जेड बार, अब हमारा z भी आ गया. यहाँ पे हमारा क्या मिसिंग है, x, x प्लस एक्स बार वाई जेड. नाउ मल्टीप्लाई इट, x वाई जेड प्लस वाई जेड बार प्लस वाई बार जेड प्लस वाई बार जेड बार, बी रिटन एज एक्स वाई जेड प्लस एक्स बार वाई जेड. नाउ को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड बार प्लस एक्स वाई बार जेड प्लस एक्स वाई बार जेड बार प्लस एक्स वाई जेड प्लस बार जेड. तो सेम टर्म है, उनको एक जगह हम कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस वन, एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड प्लस वाई जेड बार, एक्स वाई जेड बार और कहीं है, प्लस एक्स वाई बार जेड, वाई बार जेड और कहीं है नहीं, एक्स वाई बार जेड बार प्लस एक्स बार, है ना. These are the, this term is in canonical form, canonical sum of mean term. Now from here, suppose I have a plus a, what will be the value, it is plus नहीं है, ये एडिशन नहीं है, it is or operator. a taking or operation with 0 plus 0, it is 0, 0 plus 0 means 0 or 0, 0 और 1 अगर यहाँ होता है तो इट विल बी देन 1 और 0, इट विल बी 1, 1 1 पे 1 1 लिख, है ना. तो जब यहाँ पे हमें क्या है कि वेन एवर यू आर अप्लाइंग और ऑपरेशन ऑन सेम वेरिएबल देन आंसर विल बी दैट वेरिएबल. बिकॉज यहाँ पे देखो 0 0 था, वी हैव अप्लाइड और ऑपरेशन इन बिटवीन, देन व्हाट इज आउटपुट, दैट 0. हाँ, यहाँ पे 1 था, आउटपुट क्या आया, ओके. Similarly, if we have xyz 2 times, then you can write it as 1 time, y z bar plus x y bar z plus x y bar z bar plus x bar
yz. Write it. Now I want it in terms of representation of मीन टर्म. ये तो मीन टर्म है, ये भी मीन टर्म है, ये भी मीन टर्म है, ये भी मीन टर्म है और ये भी मीन टर्म है. बट आई वांट टू राइट इन टर्म्स ऑफ इट्स रिप्रेजेंटेशन. व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन? m. what will be the value of j? This is normal form, so it is 1. normal form 1, normal form 1, it is 1 1 1 1 1 1 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? it is 1 2 4, so it is 7, is m7 plus. now here it is 1 because of normal है, यहाँ पे भी normal है, so it is 1. now it is complemented form, so it will be 0. 1 1 is 0, 1 1 0 is 6, is m6 plus 1 is normal form 0, sorry, it is complemented form then 0, it is normal form then 1, because we are talking about mean term. so it is m5 plus is 1 because normal variable, it is 0 because complemented, it is again 0 because complemented, so it will be m4 plus is 0 1 1 because it is complemented, so we put 0, normal 1, okay na, so it is so we talk about in terms of representation, then it is 3 plus 4 plus m5 plus 6 plus 7. now I want to write it in terms of summation, so it will be 3 4 5 6 7, okay na. These 4 representation, either this or this or this or this, सारे के सारे हमारे क्या हैं? कैनोनिकल सम ऑफ मीन टर्म्स हैं. ठीक है. नाउ आई वांट टू कन्वर्ट कैनोनिकल सम ऑफ मीन टर्म्स इन कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म. तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? अभी हमने पढ़ा था. क्या पढ़ा था? वी हैव स्टडीड, हम जहाँ भी समेशन हो वी विल पुट पाई, और अगर पाई हो तो समेशन, और जो भी यहाँ मिसिंग नंबर हैं वो हम लिखते हैं. सो वी हैव 3 वेरिएबल्स. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट वी हैव 3 वेरिएबल फंक्शन बिकॉज द फंक्शन इज एक्स वाई जेड. सो हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? 3 वेरिएबल, एक्स वाई एंड जेड. ओके. now for 3 variable, how many combinations will be there? 2 into 2 into 2, that is 8 combination. और वो 8 combinations में what will be the decimal range? will be 0 to 7 कि नहीं? पहले में सारा 0, then 0 0 1, then 0 1 0, तरह से क्या आ जाएगा? it is 0 to 7. 0 to 7 में देखो, जब इंटरचेंज करने का हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट, तो हमने क्या पढ़ा कि जहाँ जहाँ पे आपका समेशन हो वहाँ पाई रख दे, या पाई की जगह आप समेशन रख दीजिए. देन राइट द मिसिंग नंबर. राइट द मिसिंग नंबर का मतलब ये हुआ कि 0 to 7 में क्या क्या चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है? 3 4 5 6 7 ऑलरेडी अवेलेबल. जो मिसिंग टर्म है वो यहाँ लिख दो. 0 to 7 में क्या चीज़ ऐसा है जो इस सेट में नहीं है, इसमें नहीं है? it is 0 1 2. this will be the equivalent canonical product of max term, है ना. अगर कैनोनिकल सम ऑफ मीन टर्म दिया है तो उसको हम इजीली कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म में वी कैन इजीली कन्वर्ट इट. वी विल डू वन मोर क्वेश्चंस फॉर दिस. सपोज आई हैव एग्जाम्पल, find canonical product of max term of f equal to x plus y, y plus z. इसका हमको कैनोनिकल
प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म फाइंड आउट करना है। एंड वन मोर क्वेश्चन इज कन्वर्ट इट इनटू canonical sum of mean term. What will be the solution? Solution is f equal to x plus y and it is y plus z. ऑलवेज रिमेंबर एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिख रहा है, मतलब x क्या है हमारा MSB है, z इज द LSB। ओके, तो यहाँ पे हर एक टर्म में मैंने क्या बोला, जितने भी वेरिएबल्स हैं हर एक टर्म में प्रेजेंट होने चाहिए इफ़ वी राइट कैनोनिकल फॉर्म। ओके ना, तो यहाँ पे इफ़ यू सी हियर क्या मिसिंग है, z मिसिंग है, और इन दिस टर्म व्हाट इज मिसिंग, x। तो वी कैन राइट इट लाइक x plus y plus 0, can write here 0 plus y plus z, can write। ओके ना, इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इट विल बी x plus y plus z बार इज इक्वल टू 0। z की वैल्यू अगर 0 पुट z इक्वल टू 0, इट विल बी 0 एंड 0 टू द पावर बार तो 1। इट इज़ नॉट प्रोडक्ट, इट इज़ एंड ऑपरेशन। एंड में जब दोनों 1 पे होते हैं देन आउटपुट इज़ 1, लेकिन यहाँ पे एक 0 पे है तो आउटपुट क्या होगा, 0। बट हैव टू राइट हियर z बार, दिस x बार प्लस y प्लस z बिकॉज इट इज़ मिसिंग। नेक्स्ट एक फॉर्मूला होता है बुलियन अलजेब्रा में पढ़ेंगे, a प्लस बी सी इक्वल टू a प्लस बी एंड a प्लस सी। सपोज this is a and this one is bc, this it is a, okay, so what will be the result, a plus b is x plus y plus z, a plus b into a plus c is x plus y plus z bar। Similarly it is y plus z plus x, y plus z plus x bar by this formula, and write it in order, plus y plus z, here it is x plus y plus z bar, it is x plus y plus z, x bar plus y plus z। what will be the value, the value will be x plus y plus z, x plus y plus z 2 टाइम्स है। तब कभी भी 0 एंड 0 होता है तो इट इज़ 1 एंड 1 होता है तो इट इज़ 1, बिकॉज बोथ इनपुट आर एट लॉजिक 1, सो आउटपुट विल 1, और एट 0 आउटपुट इज 0, है ना। सो यहाँ पे कुल मिला के इफ़ वी हैव a डॉट a इज a एंड इफ वी हैव x plus y plus z, x plus y z, then what plus y plus, here can write it in one time, is x plus y plus x plus y plus z bar plus y plus, okay। now दिस इज मैक्स टर्म में ऑरिंग करते हैं ना, तो यहाँ पे वही हुआ है। ओके, मैक्स टर्म में हम क्या करते हैं, नॉर्मल फॉर्म इज रिप्रेजेंटेड एज 0, नॉर्मल फॉर्म है तो 0 तो 0 0 0 0 इज कैन बी रिटन एज डॉट, इज 0 0 कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म इसमें 1 होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ मीन टर्म। ओके ना, सो इट इज नाउ is 0 1 1 m3, the form of pi 1। अब either this or this or this,
ये सारे के सारे क्या हैं? कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। है ना? अगर आपको f इक्वल टू कैनोनिकल सम ऑफ मीन टर्म में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, पाई की जगह समेशन वी पुट और फिर मिसिंग जो टर्म्स हैं वो लिखते हैं। तो अगेन वी हैव 3 वेरिएबल, सो 3 वेरिएबल वी हैव रेंज 0 to 7 already I have explained, so we have to write it here missing term. So 0 is already there, 1 is there, 2 is missing, 3 is there, 4 5 6 7 is missing the conversion. Now if you want to write it in terms of representation, then it is m2 plus m4 plus m5 plus m plus m. अब in terms of x y z भी you can write here want, okay ना? 2 की जगह क्या हो जाएगा, 2 की जगह at m2 is कैसे आएगा, 0 1 0 will be x bar y z bar. 4 कैसे आएगा, it is 0 0 1 0 0 means similarly x y bar z bar, sorry z only. Similarly we can write it as x y bar z y z bar, यहाँ पे x y चाहो तो ऐसे भी you can write. Now one example is there, we will solve one question. It comes in GATE 2010. What is the question? The mean term expansion of FQR equal to plus R bar plus R bar is. So option is M2 plus M4 plus M6 plus M7. Option B option is M0 plus M1 plus 3 plus M5. C option is M0 plus M1 plus M6 plus 7. D option is M2 plus M3 plus M4 plus. I have to pause here and you can try this question. Okay, so I think you have done it. तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना? तो ये जिस भी ऑर्डर में गिवन होता है वेरिएबल्स, उसी ऑर्डर में हम इसको लिखते हैं. सो इट इज़ MSB, P इज़ MSB एंड R इज़ LSB, ठीक है ना? So what is missing here? If you write P is 1 because we are using mean term expansion, so it is 1 1 because normal variable is there. So normal variable जब रहता है तो mean term में we will take 1 for that. It is 1 is okay. P Q R, R कहाँ आएगा, यहाँ पे, कि नहीं? Because it is in LSB. यहाँ पे P कहाँ आएगा, यहाँ पे Q कहाँ आएगा, इन बिटवीन आएगा, है कि नहीं? तो हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे R की वैल्यू क्या हो सकती है, आइदर इट इज़ 0 और इट इज़ 1. सिमिलरली 1 0 is given, but what will the value of P here is either 0 or 1. Similarly we have 1 0, the value of Q here either 0 or, यही होगा. एक आप इसको क्या करो, लिख लो. It will be 1 1 0. 1 1 0 is 1 1 0 is it is M6
प्लस 1 is 7 plus 0 1 0 is 2 m2 plus 1 1 0 means 4 plus 2 is 6 1 0 0 it is m4 1 1 0 1 1 is m। अब जब सेम टर्म रिपीट होता है तो क्या करते हैं, उसको वन टाइम लिखते हैं। प्लस 7 प्लस m2 m6 ऑलरेडी वी हैव रिटन। डेबिट है ए कितनी बार आप कर लो, आर ऑपरेटर उनके बीच ऑलवेज इट ओनली इज m4। उनको ऑर्डर में लिख दो। सो m2 प्लस m4 प्लस m6 प्लस m6। व्हाट विल बी द ऑप्शन? ऑप्शन ए is correct. Let a question is given as a Boolean function f is given as a plus b bar c, okay, and it is in canonical SOP and canonical US फॉर्म। बात वही उसी के फॉर्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि सिंप्लीफाई कर देते हैं तो मिन टर्म ऑफ मिन टर्म विल बी सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म विल बी ऑफ सम, है ना। व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस? व्हाट इज ऑप्शन ए इज गिवन summation 1 to 6 7 and pi 0 to, okay, 0 to 4, first option। second option is given summation 1 4 5 6 7 and pi 0 to 3। C option summation 1 2 5 6 7 and pi 0 1। D option is summation 1 2 4 5 6 7 and pi will be 0 to 4, है ना। I will tell you two method to solve this problem। method 1 if you talk about method 1, it is f equal to a plus b bar। what is missing here? A is missing here, b missing in this order only, because a is MSB and c is LSB, है ना। so we have to write f is a plus bar c, that is 1 because of normal variable। now it is 0 to 1 because b is complement, so it is 0, it is normal, so it can be represented as 1। so how many numbers are missing here? How many bits are missing here? 2 bits। so for 2 bits how many combination will be there? for combination 0 0 0 1 1 0 1 1, and here we have only one missing bit, that is a। directly you can write here is this one is fixed for combination, so it is 1 0 0 1 0 0, it is 4 plus 1 0 1 0 m 5, last one is 7 plus, now here 0 0 1 is 1 1 0 1 is 0 1 is, तो रिपीटेड है उसको हटा दो 5 6, और इसी को कन्वर्टेड पाई
हम समेशन को पाई कर देते हैं और जो मिसिंग टर्म है वो लिख देते हैं. सो वी हैव 3 इनपुट वेरिएबल. So what will be the range for 3 variable? It is 0 to total combination minus 1, so it will be 7. 0 to 7 में मिसिंग क्या है? 0 मिसिंग यहाँ पे नहीं है. 1 3 4 5 6 7. विच ऑप्शन इज करेक्ट? 1 4 5 6 7. 1 4 5 6 7 किस में? 5 6 0 2 3 0 2 3. ऑप्शन इज. एक तो पहला मेथड ये है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसको हम वन मोर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को. ठीक है ना? मेथड 2, मतलब यहाँ पे आप कैनोनिकल फॉर्म में चेंज मत करने जाइएगा. ठीक है ना? डोंट गो फॉर द चेंजिंग द कैनोनिकल फॉर्म, इट इज़ वेरी लेंदी. डायरेक्ट क्या करिए, जो जो मिसिंग है उसके बिट्स ऐसे लिख के रिप्रेजेंट कर दीजिए. इज़ वेरी इजी. सो इफ़ यू ऑब्जर्व इन द फर्स्ट ऑप्शन, दूसरा मेथड बता रहा हूँ, ये सबसे सिंपल मेथड है, लेकिन यू कैन अप्लाई फॉर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम ओनली. ओके ना? So here we have 2 in sum of min term. So 2 cannot be come in product of max term, क्योंकि हमने एक चीज़ देखी थी, अगर sum of min term में कोई भी इनपुट आ रहा है then that input cannot be in the product of max term, because missing बस होता है, same value नहीं होती. But in the first option we have 2 in both ऑफ देम. ये तो वैसे ही नहीं पॉसिबल है, कभी नहीं पॉसिबल है ना? दूसरा छोड़िए, थर्ड पे जाइए. थर्ड वन, तो वी हैव 1 हियर एंड वी हैव 1 हियर, तो अगेन इट इज़ नॉट पॉसिबल. 2 हियर 2 हियर, 4 हियर 4 हियर, अगेन इट इज़ नॉट पॉसिबल. यानी कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं होगा दैट विल कम इन बोथ. है ना? समझ में आ गया? क्योंकि फर्स्ट वाले में से जब हम व्हेन वी कन्वर्ट इनटू सेकंड वन, देन वी राइट ओनली मिसिंग टर्म, नॉट द रिपीटेड टर्म. ओके ना? तो हमेशा मिसिंग टर्म ही लिखेंगे, रिपीटेड नहीं लिखेंगे. तो दिस इज आवर, विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी ऑप्शन. ओके, let us try this question. This question comes in GATE 2015. है ना? तो क्वेश्चन में क्या दिया है? a function is given. तो फंक्शन f is a function in 3 boolean variable p q r. तो ऑर्डर दिया है, in that order it is msb, this is lsb. always remember this. and p bar is equal to not p. consider the following statement: s1 is this, s2 is this, s3 is this, s4 is this. So which of the following is true? ये हमें देखना है. We have p is f equal to bar plus what is missing here is terms, that is q and r. Here p missing. Okay na? So if you talk about in sum of min term, so you put 0 for the min term which has bar. So 0 1 1, because ये नॉर्मल वेरिएबल हैं तो इसको 1 1 लिखेंगे. अब यहाँ एक वेरिएबल मिसिंग है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल? आइदर 0 और 1. यहाँ पे क्या होगा? 2 वेरिएबल मिसिंग है तो इसके कितने कॉम्बिनेशन? इस टोटली हाउ मेनी कॉम्बिनेशन विल बी देयर? 4 कॉम्बिनेशन, बोथ 0 0 1 1 0 1 1. okay na? So what will be the value? Will be m000 plus 001 1 plus 010 010 plus 011 011 is m3 plus 011 is again m3, here 011, then
plus m7. What will be the value? Summation of 0 1 7. If we are going to convert it in pi, what will be the missing term? Variables are there, so we have 0 to 7 number was of 8 combinations. We start with 0, the last value will be 7. 0 1 2 all there, 4. The missing term contains only 4 5 6. Which option is correct? Which one is correct? It is summation 4 5 6. No, false. It is summation of 0 1. Yes, it is correct. This one is also correct. These two are correct. Which one? S2 S3 is true and S1 and S4 is false. So S2 S3 is true, S2 S3 is true, but remaining two are false. So first option is correct. And like our channel, then you comment it and share it with. Thank you.